اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی باہو میں ہوتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میرے سلطان آپ ٹھیک ہیں؟ آنکھیں کھولیں سلطان، یہ کہتے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی چلاتے ہوئے کہتے ہیں حکیم کو بلاؤ، جلدی بلاؤ۔ مگر سلطان ان سے کہتے ہیں صلاح الدین حکیم کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پریشان نہ کرو، میں ٹھیک ہوں۔ صلاح الدین ایوبی نے سہارا دے کر کھڑا کرتے ہیں اور سلطان کہتے ہیں ایک کے بعد ایک چیز ہوتی گئی، پھر ناک سے نکلنے والا خون صاف کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے ساتھ بچپن سے ایسا ہوتا آ رہا ہے، چلو آجو بیٹھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں اور صلاح الدین ایوبی سلطان سے کہتے ہیں میرے سلطان آج تھوڑا آرام کریں۔ تو سلطان کہتے ہیں ہمیں راحت صرف قبروں میں ہی میسر ہوگی۔ جواب میں صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں اللہ آپ کو ہم سے جدا نہ کرے۔ کچھ میں لٹ گئے بالن اور سبیلا سے کہتا ہے آپ نے ایک دوسرے کو بہت یاد کیا ہوگا۔ تو بالن کہتا ہے تم آخری شخص ہو جسے ہمیں وضاحت دینی پڑے گی لٹ گئے، تو میں فرض کروں گا کہ تم یہ باتیں نہیں دہراؤ گے۔ سبیلا کہتی ہے تمہیں لگتا ہے کہ تم سب کچھ جانتے ہو، مگر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو تم نہیں جانتے لٹ گئے۔ تو لٹ گئے کہتا ہے جی ہاں، مجھے یقین ہے کہ آپ کے شوہر لٹ جیونگ کو بھی بہت سی چیزیں معلوم نہیں ہیں، لیکن پریشان نہ ہوں، آپ کا راز میرے پاس محفوظ ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی لٹ گئے چلا جاتا ہے۔ ادھر رائبہ لوس کے شمسا سے کہتی ہے وہ شخص جو آپ کو گرجا گھر میں لے کر آیا، اس نے مجھے بتایا کہ آپ کی والدہ کو شام میں لے جایا گیا، وہ وہاں یتیم بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ شمسا پوچھتی ہے اس نے اور کیا بتایا، کیا آپ کو یاد ہے؟ جواباً رائبہ لوسیا کہتی ہے شمسا تم بہت پہلے ہی جا چکی تھی، تمہارے مالک نے تمہیں پہلے ہی بھیج دیا تھا، تمہیں ڈھونڈنا اور اس کے بعد تمہیں یہ بتانا کہ تمہاری والدہ شام میں ہے، یہ ایسا ہے جو میں نہیں کر سکتی تھی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ رونے لگ جاتی ہیں، جبکہ شمسا بھی بہت غمگین ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف کالے چوکے میں ملبوس چاتلیون ایک سرائے میں بیٹھا ہوتا ہے، اس لمحے ایک خنجر اس کے پاس میز میں آ لگتا ہے۔ خنجر پھینکنے والا لوکاس ہوتا ہے جو اس کے پاس آتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور لوکاس اسے کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ واقعی بوڑھے ہو گئے ہیں۔ چاتلیون پوچھتا ہے کیا تم مقابلہ کرنا چاہو گے؟ لوکاس کہتا ہے نہیں، ابھی مجھے زندہ رہنا پسند ہے۔ اگلے لمحے وہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں اور لوکاس کہتا ہے آپ کو یہاں آزاد اور ہمارے درمیان دیکھ کر خوشی ہوئی۔ چاتلیون اسے کہتا ہے بس خاموش رہو، میں نے تمہیں یہاں تعریفیں سنانے کے لیے نہیں بلایا، تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ تو لوکاس کہتا ہے جب سے آپ زندان میں گئے ہیں ہم بالکل بھی حرکت نہیں کر سکے۔ چاتلیون پوچھتا ہے میرے آدمیوں کا کیا ہوا؟ جواباً لوکاس کہتا ہے وہ سب بالکل پرجوش ہیں پہلے دن کی طرح، وہ ابھی آپ کے ساتھ اور وعدوں کے ساتھ وفادار ہیں اور وہ آپ کی طرف سے صرف ایک اشارے کا انتظار کر رہے ہیں۔ چاتلیون کہتا ہے مالک وہ ہمیں یہ باور کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ بزدل امن پسند ہے، اس نے کہا کہ سلطان نور الدین پاگل ہو کر ہمارے پاس آئے گا، وہ ڈرا ہوا ہے۔ تو لوکاس کہتا ہے جب آپ یہاں نہیں تھے تو امن کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ چاتلیون کہتا ہے امن بزدل بادشاہوں کے لیے ہے اور جنگ ہم جیسے بہادروں کے لیے ہے، ہمیں مسلمانوں کا مزید خون بہانا ہے۔ اس پر لوکاس کہتا ہے آئیے انہیں وہ دیں جس کے وہ مستحق ہیں، یہ مقدس سرزمین مسلمانوں کے خون کی پیاسی ہے۔ شام کی مسجد میں اسماعیل عمر ملا کے سامنے تلاوت قرآن پاک کر رہا ہوتا ہے جس کی آیات کا ترجمہ یہ ہے اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، یہ اس کے لیے نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے یا جو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، اور خدائے رحمان کے مقبول بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ناپسندیدہ بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت سن کر عمر ملا کہتے ہیں ماشاءاللہ اسماعیل ماشاءاللہ، آپ حافظ بن گئے ہیں، مبارک ہو۔ تو اسماعیل کہتا ہے اللہ آپ سے راضی ہو، ہم یہاں تک آپ کی بدولت ہی پہنچے۔ اس پر عمر ملا کہتے ہیں استغفر اللہ، اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اور آپ نے اس پر شکر کیا، مجھے وہ دن یاد ہے جب آپ بہت چھوٹے تھے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ نہ رہوں، آپ میں سے ہر ایک نے بہت محنت کی، آپ دونوں حافظ بن گئے، اب فریضے کا وقت آ گیا ہے۔ اسماعیل کہتا ہے غزہ پر سلامتی اور برکت، وہ جگہ جہاں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا سید ہاشم کو دفن کیا گیا تھا، ہم وہاں جا رہے ہیں، یہ سن کر ہمیں بہت خوشی ہوئی، یہ میرا ساتھی بصری وہیں سے ہے۔ عمر ملا کہتے ہیں جیسا کہ ہمارے سلطان کا حکم ہے ہر سال وہاں 2 نئے حافظ مقرر کیے جاتے ہیں اور اس سال آپ کی باری ہے، اس لیے میں وہاں آتے ہیں اور عمر ملا کے اشارے پر ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ عمر ملا ان سے کہتے ہیں یہ حافظ سب سے پہلے اللہ کے اور اس کے بعد آپ کے سپرد ہیں، یہ ہمارے سلطان کا حکم ہے، آپ انہیں بحفاظت غزہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا سید ہاشم کی قبر کے پاس لے جائیں گے۔ تو ایسے کہتے ہیں میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان کی حفاظت کروں گا عمر ملا، آپ بے فکر رہیں۔ سرائے میں چاتلیون خنجر کے ذریعے میز پر ایک نشان بنا رہا ہوتا ہے۔ لوکاس اس سے پوچھتا ہے ہم شروع کہاں سے کریں گے؟ تو چاتلیون کہتا ہے ہم شروع نہیں کریں گے، ہم نے جو شروع کیا تھا اسے ختم کریں گے۔ میرا اندازہ ہے کہ نور الدین اور امام لیک کے درمیان امن کا معاہدہ بہت طویل ہو گیا ہے، ہم امن کو خراب کرنے کے لیے ایسا کچھ کریں گے کہ امام لیک کو ہماری ضرورت پڑے گی۔ لوکاس پوچھتا ہے کیا یہ خطرناک نہیں ہے کہ آپ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں؟ اگر آپ بے نقاب ہوگے تو کیا ہوگا؟ تو چاتلیون اس نشان کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے میں تمہاری رہنمائی نہیں کروں گا بلکہ یہ شیبو ہوگا، میں اس کا بیس بدل لوں گا اور مسلمانوں کا قتل عام جاری رکھوں گا۔ امن ختم ہو گیا ہے، خوفزدہ بادشاہوں کا زمانہ اور ٹیمپلرز جو پوپ کی کٹ پتلی ہیں ختم ہو چکے ہیں، یہ وقت شویروں کے لیے مسلمانوں کے خون سے نہا کر ابھرنے کا وقت ہے۔ شیبو ہو کی مقدس روح جو کبھی مسلمانوں کا ڈرون و خواب تھی اب میرے ساتھ رہے گی۔ لوکاس پوچھتا ہے پہلا ہدف کیا ہے؟ تو چاتلیون کہتا ہے تم جانتے ہو ہمیشہ سے میرا خواب مدینہ اور ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو تباہ کرنا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، لیکن یہ بہت دور ہے، مگر ان کے پردادا کی قبر غزہ کے وسط میں ہے۔ میرا مطلب ہے ہم سب سے قیمتی جگہ پر جا رہے ہیں جو انہوں نے ہم سے چرائی تھی جب میں جیل میں تھا، ہم غزہ جا رہے ہیں۔ شام میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہتے ہیں مجھے جب تک تمہارے بارے میں خبر نہیں ملی میں بالکل نہیں سو سکا، میں جانتا تھا کہ تم زندہ ہو لیکن یہ جاننے سے قاصر تھا کہ تم کہاں اور کیسے ہو، اللہ کرے مجھے دوبارہ ایسا تجربہ نہ ہو۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے میں واپس آ گیا ہوں۔ سلطان پوچھتے ہیں تو بتاؤ باکراس میں کیا ہوا؟ ادھر شمسا ایک قافلے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اور سربراہ سے پوچھتی ہے ہم شام کب تک پہنچیں گے؟ تو سربراہ کہتا ہے کاروان سرائے کے بعد لمبا سفر نہیں رہ جائے گا۔ ادھر صلاح الدین ایوبی سلطان سے کہتے ہیں مختصر یہ کہ امیر یاروکی اور ملک میودود فوج کے ساتھ باہر تھے لیکن اتفاق سے میں اندر تھا، آپ کے حکم کی نافرمانی میں نے ایسی غلطی نہیں کی میرے سلطان، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ تو سلطان کہتے ہیں لیکن مصر میں تم نے کی، تم سب نے۔ صلاح الدین ایوبی کچھ کہنے لگتے ہیں تو سلطان انہیں خاموش کروا دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں تمہارے گال پر تھپڑ کے نشان سے یہ ذلت دیکھ سکتا ہوں صلاح الدین، اس لیے میں دن رات سوچتا رہتا ہوں کہ میں اس ریاست کے لیے کس پر بھروسہ کر سکتا ہوں، میں اس وجہ سے اس حالت میں ہوں۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میں اپنی شرمندگی کا اظہار نہیں کر سکتا میرے سلطان، مجھے معاف کر دیں، لیکن مجھے خوشی ہے کہ آپ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو میں آپ سے سیکھوں گا۔ قاہرہ میں جوہر خوشی خوشی شہوار کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے میں یہاں بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ شہوار پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ تو جوہر کہتا ہے مجھے پتا چل گیا ہے درگاہ نے سونا کہا
بنا رکھا ہے۔ شہوار خوش ہوتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہتے ہیں انسان منصوبے بناتا ہے اور تقدیر ہنستی ہے، زندگیاں ختم ہو رہی ہیں۔ دیکھو صلاح الدین، عالم اسلام کی قیادت آگ کی قمیض ہے، اگر تم نے اپنے آپ کو ثابت نہ کیا تو وہ اسے تمہاری جلد کے ساتھ اتار لیں گے۔ اب مجھے بتاؤ صلاح الدین، اس حقیقت کو کون دیکھے گا اور میں ریاست کس کو امانت کے طور پر دوں گا؟ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میرے سلطان، آپ اور آپ کے بابا دونوں نے وقار کے ساتھ حکومت کی، آپ کی اپنی اولاد بھی آپ کے راستے پر چلے گی۔ تو سلطان کہتے ہیں جو پیدا ہوا ہی نہیں اس بچے کے بارے میں کوئی منصوبہ بندی نہ کرو صلاح الدین۔ یہ کہتے ہیں کہ اس نے دوسرے بچوں کی طرح ایک جیسی قسمت کا اشتراک نہیں کیا، لیکن میرے لیے تو سورج ڈوب چکا ہے، یہ ظاہر ہے کہ وہ میرے ساتھ بڑا نہیں ہوگا، اس کے کان عتابے کی سرگوشیوں سے بھر جائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی پوچھتے ہیں میرے سلطان، آپ کو ایسے خیالات کیوں آتے ہیں؟ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کا بیٹا یقیناً آپ کے لائق ہوگا۔ سلطان کھڑے ہو کر ان سے پیار کرتے ہوئے کہتے ہیں صلاح الدین، تم میرے بیٹے ہو، خون کا رشتہ نہ بھی ہو تو بھی جان کا تو ہے۔ ایک بیٹے کو ثابت قدم رہنا چاہیے تاکہ ایک باپ سکون کے ساتھ آنکھیں بند کر سکے، ورنہ کچھ کی طرف پیش قدمی کرنے سے پہلے ریاست خطرے میں ہوگی۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ بالکل سکون سے رہیں سلطان، مجھے ایک موقع دیں تاکہ میں مصر کی گئی اپنی غلطی کی تلافی کر سکوں۔ جواباً سلطان کہتے ہیں ہمیں اس معاملے پر تفصیل سے بات کرنی چاہیے، جلد بازی کی ضرورت نہیں، مصر ہمارے لیے ایک فتنے میں بدل گیا ہے، سیاہ اور سفید سب بے نقاب ہوں گے اگر ہم اس آگ سے بچنے میں کامیاب ہو گئے۔ صبر صلاح الدین، قاہرہ میں شہوار جوہر سے کہتا ہے اپنی جان بچانے کا یہ ایک درست فیصلہ تھا، اس شیطان نے آخر سونا کہاں رکھا؟ تو جوہر کہتا ہے برداویل کے ساحل پر ایک حویلی کے کھنڈرات میں۔ شہوار پوچھتا ہے تمہیں یقین ہے نا؟ تو جوہر کہتا ہے فکر نہ کریں وزیر، میں نے اسے وہاں دفن کرنے والے سپاہی کے ہاتھ کاٹ کر معلوم کیا۔ یہ سن کر شہوار کہتا ہے ہمیں جلدی جانا چاہیے کیونکہ سونا ہمیں ضرورت ہے، دشمنوں کی نظریں ہم پر جمی ہوئی ہیں، ہمیں جلدی سے سونا لانا چاہیے، سونا ہوگا تو فوج ہوگی۔ اس لیے میں قاضی فاضل وہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں وزیر حضرت ایوان میں؟ تو وزیر ان کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے میں نے ایوان میں تاخیر کی ہے، ہم اسے بعد میں منعقد کریں گے، ایک فوری معاملہ ہے جسے اب طے کرنا ہے۔ تو قاضی فاضل کہتے ہیں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مگر دیوان پہلے آتا ہے۔ شہوار کہتا ہے قاضی فاضل، میں نے کہا بعد میں، کیا تم نے سنا نہیں؟ کیا میں آپ کو جواب دے ہوں کہ کب وقت ہے اور کب نہیں؟ مجھے بھی محل سے جانا ہے، اب تم جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی قاضی فاضل چلے جاتے ہیں۔ شام میں فاطمہ خاتون نے صلاح الدین ایوبی کو گلے لگایا ہوتا ہے اور وہ ان سے پیار کرتے ہوئے کہتی ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم پھر سے ایک ساتھ اکٹھے ہو گئے۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں فکر مت کریں ماں، میں آج رات یہیں رہوں گا۔ فاطمہ خاتون کہتی ہیں آخرکار یہی ہے ایوبی گھر کی برکت، یہاں اتنی خاموشی پہلے کبھی نہیں رہی تھی، لیکن مجھے یہاں اپنے بچے ہی نہیں مل رہے، اب میں چاہتی ہوں کہ میرے پوتے یہاں کھیلیں کودیں۔ اس لیے میں بزرگ وہاں آتا ہے اور کہتا ہے میرے امیر مداخلت کے لیے معذرت، مگر شہر کے محافظ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے ایک مہمان کے ساتھ آئے ہیں، وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں اسے اندر لے آؤ۔ اس لیے میں شمسہ وہاں آتی ہے۔ شمسہ کو دیکھ کر فاطمہ خاتون حیرانگی سے صلاح الدین ایوبی اور اس کی جانب دیکھتی ہیں۔ قاہرہ میں قاضی فاضل چھپتے چھپاتے ایک کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں دستاویزات ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ وہ بہت جلدی میں دکھائی دیتے ہیں مگر آواز سنتے ساتھ ہی ایک دم سے چھپ جاتے ہیں۔ کافی دیر محتاط رہنے کے بعد اندر کوئی نہیں آتا تو قاضی فاضل پھر سے تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ تلاش کے دوران انہیں جلے ہوئے کاغذات دکھائی دیتے ہیں، انہیں دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں میں جانتا تھا کہ یہ نہ جلنے والے کاغذات کام کریں گے۔ وہ دو کاغذ اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے کہتے ہیں باقی کہاں ہیں؟ تو وہاں والا کامل کہتا ہے یہاں ہیں۔ اسے دیکھتے ساتھ ہی قاضی فاضل بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ ادھر شمسہ صلاح الدین ایوبی سے کہتی ہے آپ نے کہا تھا کہ اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں آپ کو ڈھونڈ سکتی ہوں، کیا آپ ایک غیر متوقع مہمان کو قبول کرتے ہیں امیر صلاح الدین؟ تو صلاح الدین بھی ان سے کہتے ہیں خوش آمدید، کیا کچھ میں کوئی مسئلہ تھا؟ تو شمسہ کہتی ہے تقدیر نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا، میری والدہ شام میں ہیں۔ یہ سن کر صلاح الدین بھی فاطمہ خاتون کی جانب دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ ادھر کامل قاضی فاضل سے کہتا ہے میرے بابا اور جوہر درگام کا سونا لینے گئے ہیں، لیکن قاضی فاضل سونا زنگیوں کا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی قاضی فاضل بہت خوش ہوتے ہیں اور کامل انہیں دستاویزات دے دیتا ہے۔ ادھر صلاح الدین بھی شمسہ سے پوچھتے ہیں مجھے اس بارے میں بتائیں کہ کس نے آپ کو کہا کہ آپ کی والدہ شام میں ہیں؟ تو شمسہ کہتی ہے جہاں میں بچپن میں ٹھہری تھی اس گرجا گھر کی راہبہ لوسیا نے، وہ مشکل سے یاد کر پائی ہیں، یہ بہت پرانی معلومات تھی لیکن میں یہاں ایک امید کے تعاقب میں آئی ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ یہاں یتیموں کی دیکھ بھال کر رہی ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی فاطمہ خاتون ایک دم سے پوچھتی ہیں کیا وہ یتیم خانے میں کام کرتی تھی؟ تمہاری ماں کیسے دکھتی تھی؟ ان کا نام کیا تھا؟ شمسہ کہتی ہے میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا، وہ آپ کی عمر کے لگ بھگ ہوں گی، ان کا نام ماریا ایوا ہے۔ یہ سن کر فاطمہ خاتون کہتی ہے بیٹی میں نے ایسا نام نہیں سنا۔ صلاح الدین بھی کہتے ہیں ہمیں مزید تفتیش کرنے کی ضرورت ہے، میں کل جلدی آ جاؤں گا اور ہم ایک ساتھ یتیم خانے جائیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی صلاح الدین بھی چلے جاتے ہیں اور فاطمہ خاتون شمسہ سے کہتی ہیں تمہیں بھوک لگی ہوگی بیٹی، میں کھانا تیار کرتی ہوں۔ قاہرہ میں قاضی فاضل کبوتر کے ساتھ خبر باندھ کے اسے اڑا دیتے ہیں۔ ادھر چاتیون اپنے سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے خداوند یہ سب آپ کے لیے ہے، جیسا کہ آپ کہتے ہیں یہ جنگ اور امن دونوں کا وقت ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اپنا چہرہ ڈھانپ لیتا ہے اور مزید کہتا ہے اب یہ جنگ کا وقت ہے سپاہیوں، چلو۔ اس کے سپاہی بھی اپنے چہرے چھپا لیتے ہیں اور وہ سب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ میں ولیم آگے بڑھتے ہوئے لاڈگائے سے کہتا ہے میں نے کل رات سے چاتیون کو نہیں دیکھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں؟ تو لاڈگائے کہتا ہے شویروں کو ایک ہی جگہ رہنا پسند نہیں ہوتا، جیسا کہ آپ کے مذہب کے لوگ کرتے ہیں، خاص طور پر ایک ایسا شویر جس نے برسوں زندان میں گزارے ہوں۔ یہ سن کر ولیم کہتا ہے یعنی آپ بھی نہیں جانتے؟ تو لاڈگائے ہاتھ کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے چاتیون یہاں میرے ہاتھ میں ہے، پریشان نہ ہو، وہ حیوان میرے قابو میں ہے۔ تو ولیم پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے مجھے امید ہے لاڈگائے، مجھے امید ہے۔ شام میں صلاح الدین بھی فاطمہ خاتون اور شمسہ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ شمسہ ان سے پوچھتی ہے وہ تمام معلومات کیا اب تک محفوظ ہوں گی؟ کیا سچ میں؟ تو صلاح الدین بھی کہتے ہیں جی ہاں، یہاں تک کہ وہاں کھانے کے بارے میں بھی سب کچھ لکھا گیا ہے، اگر انہوں نے واقعی یتیم خانے میں کام کیا ہے تو ان کے بارے میں ہر چیز قلم بند ہوگی، فکر نہ کرو۔ اس لیے میں بزرگ عرفا کے ساتھ تیزی میں وہاں آتا ہے اور صلاح الدین کو ایک چٹھی دیتے ہوئے کہتا ہے یہ قاضی فاضل کی طرف سے ہے۔ پیغام پڑھتے ساتھ ہی صلاح الدین بھی کہتے ہیں ماں مجھے فوراً محل جانا ہوگا، شمسہ کا خیال رکھنا، اماد کو مطلع کریں اور پرانے انتراج کے بارے میں پوچھیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی صلاح الدین بھی چلے جاتے ہیں۔ ادھر شہوار جوہر اور سپاہیوں کی بڑی تعداد کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے درگام ایک چالاک لومڑ تھا، خزانے کا ایک چوہا، پہلا منصوبہ درگام کو گرانے کا تھا جو ہم نے کیا، دوسرا زنگیوں کو پیچھے ہٹانا تھا، ہم نے وہ بھی کیا، اب جب سونا مل جائے گا تو منصوبہ مکمل ہو جائے گا، ہمیں اب کسی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جوہر کہتا ہے پیچھے جو آدمی ہمارے ساتھ ہے یہ مصر کا بہترین خزانہ شکاری ہے، یہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ شہوار کہتا ہے بہت خوب، تم نے اسے سب کچھ بتا دیا نا، اگر خزانہ نہ ملا تو اسے دفن کر دیا جائے گا۔
जाएगा। वो सब वीरान पहाड़ियों से आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। इधर सलाहुद्दीन भी आगे बढ़ते हुए साथियों से पूछते हैं, क्या एथिस गजा से वापस आ गया है? तो उर्फा कहता है, नहीं अभी तक नहीं मेरे अमीर। जवाब में सलाहुद्दीन भी कहते हैं, वो जब वापस आए तो तैयार रहना, मेरा ख्याल है कि हम दोबारा मिस्र जाएंगे। ये कहते साथ ही सलाहुद्दीन भी महल में दाखिल हो जाते हैं और सीधे सुल्तान के दीवान में जा पहुंचते हैं, जहाँ पे सुल्तान के वजीर और मुशीर खड़े होते हैं। सलाहुद्दीन को देखकर सुल्तान कहते हैं, हम आप ही के बारे में पूछ रहे थे सलाहुद्दीन, लेकिन मालूम हुआ कि आपके पास कोई मेहमान है। तो सलाहुद्दीन भी खबर दिखाते हुए कहते हैं, मेरे सुल्तान मैं आपके पास खुशखबरी लेकर आया हूँ। यह सुनकर सुल्तान उनसे खबर लेकर पढ़ते हैं। सलाहुद्दीन भी मजीद कहते हैं, सुल्तान जैसा कि आपने कहा था काजी फाजिल ने अपना वादा निभाया है। मेहदूद पूछता है, इसमें अच्छी खबर क्या है? शेर को कहते हैं, शहवार ने मामला ताज़ा कर दिया है। तो सलाहुद्दीन भी कहते हैं, उन्हें वो जगह मिली है जहाँ दरगाह में खजाना छुपाया हुआ था। काजी फाजिल ने कहा कि वो एक दस्ते के साथ सोना लेने जाएंगे, जिसकी क़यादत शहवार जोहर के साथ खुद कर रहा है। यारुकी कहता है, फिर चले इंतजार ना करें, सुल्तान इजाजत दें, अपना मंसूबा तैयार करें और निकले। सुल्तान कहते हैं, सोना लेना हमारा हक है, जो उसने हमसे अदा करने का वादा किया लेकिन अदा नहीं किया। अपना मंसूबा बनाओ और फौरन निकलो। ये सुनते साथ ही वो सब जाने लगते हैं, मगर सुल्तान कहते हैं, सलाहुद्दीन तुम नहीं जाओगे। सुल्तान की बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और सुल्तान कहते हैं, अमीर यारुकी मेहदूद और शेर को जाएंगे, ये फर्ज इनका है। ये सुनते साथ ही वो तीनों चले जाते हैं और सलाहुद्दीन भी पूछते हैं, मेरे सुल्तान आप मुझे क्यों नहीं भेज रहे? उधर एक मुकाम पर लुकास चातलियन से कहता है, मुझे लगता है कि आपने अपने आदमी को उसी तरह पाया जैसे आपने इन्हें छोड़ा था। तो चातलियन कहता है, हमें जल्दी पता चल जाएगा, देखो जरा से भी हिचकिचाहट हो या कोई अपनी तलवार छुपा ले तो हमारे हलफ के तकाजे वाजे हैं। यह सुनकर लुकास कहता है, हमारी तलवारें उस वक्त तक म्यान में नहीं जाएंगी जब तक कि सरजमीन पर एक भी मुसलमान बाकी है। फिर भी आपके लिए बहुत खतरनाक है चातलियन, अगर आपकी शनाख्त जाहिर हो जाती है और आप वापस जिंदान में चले जाते हैं तो ये हम सबका खात्मा होगा। चातलियन हंसते हुए कहता है, लुकास हम लामहदूद हैं, लाफानी हैं, जो मर जाएंगे वो मुसलमान हैं। उधर सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी से कहते हैं, क्या कायरा में तुम्हारी शिकस्त की वजह तुम्हारा इख्तिलाफ नहीं था सलाहुद्दीन? क्या वहाँ इंतशार तुम्हारे फैसले के बगैर किए गए कामों से नहीं हुआ? क्या तुम इसकी वजाहत ऐसे करते हो? तो सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं, मेरे सुल्तान जो आप कह रहे हैं वही हकीकत है, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है, मुझे इस फर्ज से बाज रखने के लिए। तो सुल्तान एकदम से कहते हैं, मैं तुम्हें फर्ज से नहीं रोक रहा, बल्कि मैं उन्हें फर्ज पर भेज रहा हूँ, जैसा कि तुम उन्हें एक वजह के तौर पर इस्तेमाल करते हो। सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं, यह सुल्तान का काम है, यकीनन राज है, कोई ऐसी हिकमत होगी जिस तक मेरी अकल नहीं पहुंच पा रही, लेकिन मेरा सर आपके हुक्म पर झुक भी जाए तब भी मेरा दिल नहीं मानता मेरे सुल्तान। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं काफी अरसे से सरहद कबाइल से दूर हूँ, मैं करारगाह जाऊंगा। ये कहते साथ ही सलाहुद्दीन भी गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। उधर चातलियन सिपाहियों से कहता है, खुदावंद मैं यहाँ आपके वफादार और ईमानदार बच्चों के साथ आया हूँ, अब इबादत का वक्त है, चर्च की नशिस्तें बुज़दिलों के लिए रहें और अजमत वेटिकन के लिए। मैं एक बात का वादा करता हूँ, मुसलमान का खून तुम्हारी तलवारों को दाग देगा, हमारी सरजमीन से वो मुसलमान और उनके झूठे नबियों के छोड़े हुए निशानात, नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह, जब तक हम उनको मिटा नहीं देते हम नहीं रुकेंगे। तो उसके सिपाही एक जुबान होकर कहते हैं, हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं रुकेंगे। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि गजा में एथिस उन दो हाफिजों के साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा सैयद हाशिम के मकबरे के पास मौजूद होते हैं और कहते हैं, इस मुकद्दस मकबरे की हिफाजत करना यह फर्ज गजा के खुशकिस्मत लोगों को नसीब हुआ है। इसके साथ वो सब हाथ उठाकर दुआ मांग चातलियन अपने सिपाहियों के साथ मुसलसल गजा की जानिब रवाना दवा होता है। मकबरे पर एथिस दुआ मांगते हुए कहते हैं, इन्होंने आपकी किताब को हिफ्ज कर लिया है, इन्हें साबित कदमी अता फरमा, तो हमें राह हक पर साबित कदम रख, आमीन आमीन आमीन। दुआ के बाद एथिस कहते हैं, मेरा फरीजा अब पूरा हो गया है, मैं आपको सही सलामत यहाँ लाया हूँ, मुझे अब जाना होगा, सलामत रहो सलामत। ये कहते साथ ही एथिस चले जाते हैं। इधर आगे बढ़ते हुए एक शख्स चातलियन के पास आता है, उसे देखते हुए चातलियन कहता है, अब से आप रहनुमाई करेंगे। अगले लम्हे वो सब उसके साथ साथ आगे बढ़ जाते हैं। कुछ में बालिन जिंदान में मौजूद लार्जियोम के पास आता है और उसे देखकर कहता है, इन दीवारों को देखकर तुम मुझे और मेरे भाई को कोस रहे होगे है ना? मैं यहाँ तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ, बाक्रास में मौका नहीं मिल सका। तो लार्जियोम कहता है, बालिन मैंने भी तुमसे कुछ कहना है, अगर मैं यहाँ से नहीं निकल सका या मेरे साथ कुछ हो गया तो मैं सबीला और मेरे बच्चे के लिए तुम पर एतमाद कर सकता हूँ, वो अब भी तुम्हें चाहती है बालिन, भले ही तुम इनकार करो मैं उसे तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ। बालिन कहता है, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम क्या कह रही हो, तुम यहाँ से निकलोगे, अपने और अपनी बीवी के साथ मिलकर अपने बेटे की खुद ही परवरिश करोगे, ये मेरा तुम्हारे साथ वादा है। उधर आगे बढ़ते बढ़ते वो शख्स रुककर चातलियन से कहता है, मेरी तरफ से इतना ही था, सामने पहाड़ी को अबूर करें, आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। मैंने कहा था कि मैं फौरी उजरत पर काम करता हूँ। यह सुनकर चातलियन से कहता है, तो फिर हम तुम्हारी अदायगी करते हैं। ये कहते साथ ही चातलियन से काट डालता है और कहता है, वफादारी बेवकूफों के लिए है, जो जीतना जानता है वो जानता है कि सही वक्त पर किसको धोखा देना है और कैसे। मुझे गूंजदार और तासराती अल्फाज बहुत पसंद है लुकास, तुम जानते हो। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि गजा में हाफिज मकबरे की सफाई कर रहे होते हैं। इसलिए हमें एक नन्हा सा बच्चा यहिया उनके लिए मशरूब लेकर आता है। उसे देखकर बसरी कहता है, यहिया ने हमें दोबारा याद किया और हमारे लिए मशरूब लाया है, शुक्रिया, अपनी नानी को हमारा सलाम कहना। फिर मशरूब पीते हुए कहता है, उन बाबरकत खातून ने एक मरतबा फिर बेहतरीन तरीके से बनाया, उनका नवासा भी बहुत होशियार है, यह भी तमाम आयात को ज़बानी याद किए हुए है अल्लाह के हुक्म से। तो इस्माइल कहता है, अरे तो ये कहो ना कि हमारे पास एक और हाफिज है माशाल्लाह। इसके साथ ही यहिया चला जाता है। इधर से चातलियन मुसलसल गजा की जानिब पेशकदमी करता ही चला जाता है। गजा में मामलात जिंदगी रोजमर्रा की तरह जारी और सारी होती है, मगर इसी लम्हे दरवाजे पर तैनात जंगी सिपाहियों को तीर आ लगते हैं और अंदर दाखिल होने वाला चातलियन सिपाहियों के साथ उन्हें काटना शुरू कर देता है। ये देखकर लोग भागते हुए कहते हैं, हमला हुआ है, हमला हुआ है। चातलियन और उसके सिपाही घोड़ों से उतरते हैं तो लोग मजामत की कोशिश करते हैं, मगर सिपाहियों के साथ साथ लोग भी उनका निशाना बन जाते हैं। चातलियन के सिपाही खूब महारत से लड़ने वाले दिखाई दे रहे होते हैं। डरा हुआ यहिया छुपकर ये सारा मंजर देख रहा होता है। माएं अपने बच्चों को महफूज कर रही होती हैं, मगर चातलियन कहता है, किसी औरत को भी जिंदा ना छोड़ना, परिंदों और चूहों तक को देखो तो मार डालो, बच्चों को भी मार डालो, अगरचे वो झूले में ही क्यों ना हो, यहाँ से कोई जिंदा नहीं निकलेगा। लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए जाते हैं। खवातीन को घसीट घसीट कर मारा जा रहा होता है, उन्हें बचाने के लिए आने वाले भी मारे जा रहे होते हैं। चातलियन का सिपाही एक शख्स को दीवार के साथ मार मार कर शहीद कर देता है। एक नन्ही सी बच्ची अपनी शहीद माँ के पास बैठी रो रही होती है। उधर मकबरे के पास सब लोग इस चीज से लाइल्म होते हैं। बाजार में खरीदो फरोख्त हो रही होती है। कुछ देर के बाद उन्हें आवाजें सुनाई देती हैं। इस्माइल बस्ती से कहता है, हमले के लिए तैयार हो जाओ, हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कोई चीज ढूंढो। लोगों के हाथ में जो आता है वो लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सब मकबरे के आसपास खड़े हो जाते हैं। बस्ती एक सिपाही से
कहता है बड़े मुहाफिज दस्तों को मुतला करो जल्दी। ये सुनते साथ ही स्पाई चला जाता है और इस्माइल कहता है जब तक मुहाफिज नहीं आ जाते हम या तो शहीद होंगे या गाजी। चातलियन उनके सामने आते हुए कहता है जो चाहो बनो, तुम्हें शिकस्त होगी। हमला। इसके साथ वो लोगों पे टूट पड़ते हैं। लोग मुजामत की कोशिश करते हैं मगर नाकाम दिखाई देते हैं। एक बच्ची अपनी शहीद माँ से थोड़ी दूर बैठी रो रही होती है और माँ माँ पुकारती है। ये देखकर एक शख्स उसकी माँ के पास आता है मगर चातलियन का सिपाही उसे भी काट डालता है। जंगी सिपाही भी मुसलसल शहीद होते ही चले जाते हैं। एक शख्स बड़ी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए चातलियन के सर में डंडा दे मारता है मगर चातलियन अगले लम्हे उसे काट डालता है। बसरी चातलियन पे हमला करने ही लगता है मगर चातलियन उसे भी शहीद कर देता है। इसलिए में लुकास भागता भागता चातलियन के पास आता है और उससे कहता है मुहाफिज दस्ता आ रहा है, हमें जाना चाहिए। हम किसी को हमारे बारे में मालूम करने का खतरा मोल नहीं ले सकते। वो जान ही लगते हैं कि इस्माइल उन पे हमला कर देता है मगर चातलियन उसे भी काट डालता है। बाकियों के साथ इस्माइल और बसरी भी शहीद हो जाते हैं और ये सारा जुल्म करने के बाद चातलियन चला जाता है। शाम में सफियानी सुल्तान से कहते हैं मेरे सुल्तान माफी का सहारा लेते हुए कह रहा हूँ अमीर सलाउद्दीन ने आपके फैसले का मतलब पूरी तरह से नहीं समझा होगा, इसलिए उन्होंने ये बातें कही मैं सोचता हूँ वो यकीनन समझ जाएंगे। इसलिए हमें उमर मल्ला नाम आंखों के साथ वहाँ आते हैं। सुल्तान उनसे पूछते हैं ये क्या हालत बना रखी है उमर मल्ला। तो उमर मल्ला कहते हैं मेरे सुल्तान गजा के दिल पर आग बरसाई गई है। यह सुनकर सुल्तान और सफियानी बहुत परेशान हो जाते हैं। बाहर सलाउद्दीन भी अपने साथियों के साथ मौजूद होते हैं। उन्हें देखकर उर्फा कहता है मेरे हुजूर इतना ना सोचें, क्या आपने सरहद गाजियों को याद नहीं किया? मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेहतर है। सलाउद्दीन भी पूछते हैं एथिस कहाँ है? हमने रवाना होना था, क्या वो इस बारे में नहीं जानता था? तो बुजुर्ग कहता है मेरे अमीर वो जानता है, उन्होंने कहा कि मैं उमर मल्ला अफंदी से मिलने जाऊंगा और वो चला गया। इसलिए मैं एथिस भागते भागते वहाँ आते हैं और गमगीन होते हुए कहते हैं गजा मेरे अमीर गजा, हमारे परदादा हाशिम की कब्र पे हमला हुआ है। यह सुनकर सलाउद्दीन भी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उनके साथी भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बोरो कबीले में करतगन शराब पीते हुए कहता है जब मैं मोसल से मिस्र की जानिब सफर कर रहा था मुझे ऐसे लगा जैसे मैं अपने कबीले से बहुत दूर चला गया हूँ। हालात कैसे हैं? तो स्पाई कहता है आपके जाने के बाद हर चीज का जायका खत्म हो गया हुजूर। इसलिए मैं एक और स्पाई आकर कहता है सुल्तान नूरुद्दीन और अमीर सलाउद्दीन का हुक्म है, हमें फौरन गजा का सफर बांधना है। करतगन गुस्से से कहता है रुको रुको क्यों? क्या वो नहीं जानते कि मैं अपने कबीले में अभी पहुंचा हूँ? वो मुझसे दोबारा क्या चाहते हैं? तो स्पाई कहता है गजा में उस गांव पे हमला हुआ है जहाँ सैयद हाशिम दादा की कब्र है। यह सुनकर करतगन परेशान होते हुए कहता है सैयद हाशिम पर दादा की कब्र पे? चलो फौरन चलो। ये कहते साथ वो खेमे से निकल जाता है। उधर सलाउद्दीन भी अपने साथियों के साथ गजा की जानिब बढ़ रहे होते हैं। कुछ में बालेन आगे बढ़ रहा होता है। इसलिए मैं लड़गाई उसके पास आता है और कहता है तुम्हें कैसे पुकारा जाए मुझे यकीन नहीं है। कौन? बालेन कहने लगा था लेकिन इज्जत माब बादशाह ने अभी तक तुम्हें ये लकब नहीं दिया। बालेन कहता है मेरा जाती नाम किसी भी लकब से ज्यादा कीमती है, मुझे आप बालेन कह सकते हैं। आपको देखकर लगता है कि आपने मुझे कुछ कहना है। जवाब में लड़गाई कहता है कह लेते हैं कि मेरे पास कुछ सवालात हैं। तो बालेन कहता है आ जाएं फिर। ये कहते साथ वे कमरे में दाखिल हो जाते हैं। उधर तख्त पे बैठा हुआ इमारलेक अपने बेटे को लड़ता हुआ देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। उसका बेटा एक स्पाई के साथ तलवारबाजी कर रहा होता है। इसलिए मैं विलियम तेजी में वहाँ आता है और कहता है गजा के जिस गांव में सैयद हाशिम की कब्र है वहाँ हमला हुआ है, तकरीबन सारे गाँव वालों को मार दिया गया है। ये सुनते साथ ही मालिक एकदम से उठ खड़ा होता है और कहता है ऐसा कौन कर रहा है? जब मैं अमन कायम करने की इतनी कोशिशें कर रहा हूँ इसको मलिया मेट करने की हिम्मत किसने की? विलियम। उधर कमरे में दाखिल होते हुए बालेन लड़गाई से पूछता है आपको क्या तजस्सुस है? तो लड़गाई कहता है मसलन मिस्र में तैयारियां कैसी जा रही हैं? यकीनन एक चीज और भी है, तुम जब लार्जियन के पास कैद खाने में मुलाकात करने गए क्या तुमने उसे बताया कि तुम और उसकी बीवी सबीला अब भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हो? ये सुनते साथ ही बालेन को बहुत गुस्सा आता है और वो पलट के एक जोरदार मुक्का लड़गाई को रसीद करता है। फिर उससे कहता है आप कुछ नहीं जानते लड़गाई, इसलिए अपना मुंह बंद रखें। जवाब में लड़गाई भी पलट के उसे मुक्का मारता है। दोनों गुत्थम गुत्ता हो जाते हैं और लड़गाई कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम जल्द समझ जाओगे और ये भी कि तुम्हें किस तरह हद याद दिलानी है। तो वहाँ पहुंचने वाला विलियम कहता है अगर आपका झगड़ा खत्म हो गया है तो बादशाह आपकी मौजूदगी के फौरन मुंतजर हैं। ये सुनते साथ ही दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं और वहाँ से चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ चातलियन सिपाहियों के साथ एक मुकाम पे बैठा होता है। इसलिए मैं लुकास उसके पास आता है। चातलियन से पूछता है हमारा क्या नुकसान है? तो लुकास कहता है 2 आदमी। जवाबन चातलियन कहता है खुदावंद उन्हें अपनी जन्नत में कबूल फरमा। लुकास कहता है अगर मुहाफिज दस्ता हमारा पीछा करता तो इसके नताइज बिल्कुल भी काबिल कबूल ना होते चातलियन। अब अगला कदम क्या है? तो चातलियन कहता है रुकना और मुसलमानों के हमारे किए दरे का जवाब देने का इंतजार करना। गजा और इतने कमजोर लोग उन्हें आग लगाने के लिए काफी है। ये कहते साथ ही चातलियन आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ सलाउद्दीन भी अपने साथियों के साथ गजा की जानिब बढ़ते ही चले। उसमें मालिक बेचैनी के आलम में टहल रहा होता है। इसलिए मैं विलियम बालेन और लड़गाई को लेकर वहाँ आता है और बालेन कहता है मैं हैरान हूँ कि मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया गया जबकि मैं मिस्र के लिए रवाना होने वाला था। तो मालिक कहता है मिस्र इंतजार कर सकता है बालेन, अब हमें एक बहुत बड़ा मसला दरपेश है, तुम्हें फौरन गजा जाना है। वहाँ बहुत बड़ा सानेहा पेश आया है। मुसलमान जिनके लिए बहुत अकीदत रखते हैं, जहाँ उनके पैगम्बर के अजीम परदादा की कब्र है, वहाँ के मासूम लोगों को मारा गया है। बालेन पूछता है ये हमने नहीं किया ना? तो मालिक कहता है बालेन यकीनन हमने नहीं किया, इसलिए सुल्तान नूरुद्दीन की जानिब से हमें जवाबदेह ठहराने से पहले हमें फौरन हरकत में आना होगा। ये वक्त है कि तुम सलाउद्दीन के साथ दोस्ती के सम्राट हासिल करो, जाओ और सलाउद्दीन को कायल करो। सुल्तान नूरुद्दीन ने उसे गजा भेजा है, उसके साथ हरकत में आओ। इस मामले का जिम्मेदार या जिम्मेदारों का सरगना कौन है, उसके हिस्सेदारों को तलाश करना जरूरी है बसरूत दीगर। तो बालेन एकदम से कहता है जंगियों से जंग नागुज़ीर हो जाएगी। मालिक कहता है और मैं अभी जंग नहीं चाहता बालेन। गजा में जंगी सिपाही शोधा की मैयतें उठा रहे होते हैं और बच्चों को भी सहारा दिया जा रहा होता है। सलाउद्दीन भी अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और ये मंजर देखकर सब बहुत गमगीन हो जाते हैं। लोग अपने शोधा की मैयतों के पास मौजूद होते हैं। मकबरे के सामने पहुंचकर सलाउद्दीन भी और उनके साथी सीनों पर हाथ रख लेते हैं। फिर सलाउद्दीन भी कहते हैं सदियां बीत गई लेकिन इनकी ना खत्म होने वाली नफरतें बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रही। तो लतीफ कहता है खत्म नहीं होंगी मेरे अमीर, कायनात की तख्लीक के बाद से यही जदोजहद जारी है। खलील कहता है मेरे अमीर उन्हें किस चीज का घमंड है, उन्होंने हमारी रूह के टुकड़ों को मार डाला, उन शैतानों ने इनकी एक फरियाद भी नहीं सुनी। तो सलाउद्दीन ये भी कहते हैं गजा की खवातीन ऐसी ही हैं खलील, दुश्मन को खुश होने का मौका नहीं देती। फिर जमीन पे बेलचा लोहा डंडा देकर कहते हैं ये इन जंगजों के हथियार थे, ये उन बदनस्लों के सामने नहीं झुके। जमीन और आसमान में जो कुछ भी है उसकी कसम खाता हूँ, इनके साथ ये करने वालों को दुनिया के लिए इबरत बनाऊंगा। मेरी जान जिसके कब्जे कुदरत में है उस अल्लाह की कसम खाता हूँ, अपने तमाम शहीदों का बदला लूंगा। चलो मेरे लिए सुराग तलाश करो, शाबाश जल्दी करो। ये सुनते साथ ही सिपाही तलाश
تلاش میں لگ جاتے ہیں اور ننا یحییٰ اسماعیل کی لاش کے پاس بیٹھا صلاح الدین ایوبی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ شام میں وزیر اعماد شمسہ کی والدہ کی معلومات تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ شمسہ، فاطمہ خاتون اور ملکہ بھی وہی موجود ہوتی ہیں۔ کچھ دیر کے بعد وزیر اعماد کہتے ہیں ماریہ ایوا نہیں ہے، لیکن ایک عورت ہے جسے مریم ہوا کہا جاتا ہے، یعنی آپ کی ماریہ ہماری مریم ہے اور آپ کی ایوا ہماری ہوا ہے۔ یہ سن کر شمسہ بہت خوش ہوتی ہے۔ وزیر اعماد مزید کہتے ہیں جس کی تمہیں تلاش ہے یہ وہ ہو سکتی ہیں۔ قائدہ کی دکان میں میلا جمشید سے کہتی ہے اس سے پہلے کہ میں صلاح الدین کو مار سکوں اسے مصر سے نکال دیا گیا، میرے سارے منصوبے زمین بوس ہو گئے، مائلز کی روح ابھی بھی تڑپ رہی ہے۔ تو جمشید کہتا ہے پرسکون رہیں، جیسا کہ وہ کہتے ہیں ہر معاملے میں اچھائی چھپی ہوتی ہے۔ میلا غصے سے کہتی ہے خبردار جمشید، اس مضحکہ خیز تسلی کو اپنے پاس رکھو۔ اس لیے ایک سپاہی وہاں پہ آتا ہے اور جمشید کو خط دیتے ہوئے کہتا ہے یہ آپ کے لیے آیا ہے۔ خبر کو دیکھ کر جمشید کہتا ہے یہ کرک سے آئی ہے اور آپ کے معاون نے بھیجی ہے۔ خبر پڑھ کر میلا کہتی ہے بادشاہ مالک وہ قدس میں میرا انتظار کر رہا ہے، تیاریوں سے متعلق کام جاری رکھو، میں فوراً روانہ ہونا چاہتی ہوں۔ جمشید پوچھتا ہے اچھا تو دکان کا کیا کریں؟ جواباً میلا کہتی ہے ابھی کے لیے ایسے ہی رہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ چلی جاتی ہے۔ شام میں شمسہ وزیر اعماد سے کہتی ہے مجھے حیرانگی ہے کہ انہیں اپنا عیسائی ہونا چھپانا پڑا۔ وزیر اعماد کہتے ہیں زنگی زمین میں کبھی بھی کسی کو بھی اپنا دین چھپانے کی ضرورت نہیں پڑی اور نہ ہی کبھی کسی کو مجبور کیا گیا، نہ کسی یہودی کو اور نہ کسی عیسائی کو۔ پھر شمسہ کہتی ہے کوئی رہائش گاہ تو یقیناً درج ہوگی، مزید کیا لکھا ہے؟ تو وزیر اعماد کہتے ہیں لکھا ہے کہ اس نے 2 سال کام کیا، لیکن اس کے نام کے آگے ایک تحریر بھی لکھی ہے۔ اس وقت بچوں کے اغوا کے معاملات سامنے آئے تھے، اسے شک کی بنیاد پر جلا وطن کیا گیا اور اس کی رہائش کے بارے میں معلومات درج ہے۔ وزیر اعماد کے معلومات پڑھنے سے پہلے ہی ایک سپاہی وہاں پہ آتا ہے اور کہتا ہے صلیبی نے غزہ پر حملہ کر دیا ہے، ہمارے بہت سے شہید ہیں۔ یہ سن کر سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ عماد وزیر پوچھتے ہیں کیا سب محل میں ہیں؟ تو سپاہی کہتا ہے امیر صلاح الدین اپنے گھوڑے کے ساتھ غزہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی عماد وزیر چلے جاتے ہیں اور شمسہ کا کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ غزہ میں عزیز اسماعیل کی لاش کے پاس آتے ہیں اور اس کا چہرہ دیکھ کر بہت غمگین ہو جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں میرے حافظ اسماعیل۔ یہ کہتے ساتھ اس کی آنکھیں بند کر دیتے ہیں اور مٹھی بند کرتے ہوئے کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہارا خون زمین پہ رہے گا نہیں جانے دوں گا، قسم کھاتا ہوں اگر میں تمہارا بدلہ نہ لوں تو میرا خون خشک ہو جائے، میں تمہارا انتقام لوں گا۔ یہ کہتے ساتھ وہ اس کا چہرہ ڈھانپ دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد کرتگن وہاں پہنچتا ہے اور مقبرے کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ اس کی نگاہیں مسلسل مقبرے پہ ہی ٹھہری ہوتی ہیں۔ وہ مقبرے سے اندر دیکھتا ہے تو اسے اپنا بچپن یاد آتا ہے، جب بچپن میں وہ مقبرے کے اندر موجود تھا اور کافر مسلمانوں پہ ظلم کر رہے تھے۔ وہ ڈر کر وہاں بیٹھ گیا تھا اور اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ اس منظر کو یاد کرتے ہوئے کرتگن پھر سے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ اسے بچپن جیسا شور سنائی دیتا ہے۔ بچپن میں اس کے زخمی بھائی نے مقبرے کا دروازہ کھولا تھا اور کرتگن کے سامنے گرتے ہوئے اس نے کہا تھا کرتگن چھپ جاؤ میرے بھائی، چھپ جاؤ، خود کو بچاؤ، کسی بھی طرح بھاگو، ان میں کوئی رحم نہیں ہے۔ تو کرتگن نے کہا تھا یہ نہیں ہو سکتا بھائی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بھائی نے کہا تھا اگر تم مر گئے تو ہماری نسل کو بچانے کے لیے کوئی دوسرا آدمی نہیں بچے گا، بھاگو کرتگن، تمہیں زندہ رہنا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس کے بھائی کی سانسیں تھم گئی تھیں اور کرتگن کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ اس منظر کو یاد کرتے ہوئے اس کے کانوں میں مسلسل یہی الفاظ گونجتے ہیں چھپ جاؤ بھائی، چھپ جاؤ، بھاگو بھائی بھاگو، ان میں کوئی رحم نہیں ہے، ان میں کوئی رحم نہیں ہے، خود کو بچاؤ، چھپ جاؤ، تمہیں زندہ رہنا چاہیے۔ بہت دیر کے بعد کرتگن خود کو سنبھالتا ہے۔ خلیل اس کے پاس سے گزرتے ہوئے کہتا ہے کرتگن وہاں ایسے کھڑے رہنے کے بجائے ادھر ادھر دیکھو، ان بغیرتوں کے سراغ ڈھونڈنے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی خلیل آگے بڑھ جاتا ہے اور کرتگن مقبرے کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ پھر جیسے ہی اندر داخل ہونے لگتا ہے اسے وہ لمحہ یاد آتا ہے جب وہ اپنے بھائی کی لاش کو اندر کھینچنے کے بعد دروازہ بند کر رہا تھا۔ باہر کمانڈر چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا میں ان دونوں بھائیوں کو طلب کرتا ہوں، وہ جہاں بھی ہیں انہیں تلاش کر کے میرے پاس لاؤ، زندہ یا مردہ۔ کچھ دیر کے بعد کرتگن مقبرے سے باہر آیا تھا جہاں پہ کافر مسلمانوں کو شہید کرتے جا رہے تھے۔ اسی لمحے گھڑسوار وہاں پہ آیا تھا اور کرتگن کو اٹھا کر نکل گیا تھا۔ اس خیال کے بعد کرتگن اپنا پاؤں پیچھے کر لیتا ہے اور گرتے پڑتے ایک درخت کے سہارے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کے سپاہی اس کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے حضور کیا آپ ٹھیک ہیں؟ مگر کرتگن کوئی جواب نہیں دیتا اور مقبرے کی جانب دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ ادھر عرفہ صلاح الدین ایوبی کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے میرے امیر کوئی بھی ان کی شناخت کے بارے میں کچھ واضح نہیں بتا رہا، بس اتنا ہی پتہ چلا ہے کہ ان سب نے سیاہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سرماؤں جیسے نہیں تھے بلکہ مختلف تھے، وہ راز کی طرح آئے اور غائب ہو گئے۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یحییٰ ان کے پاس آتا ہے اور انہیں پکڑتا ہے تو صلاح الدین ایوبی سے پوچھتے ہیں خیریت ہے بچے، کچھ کہو گی؟ اس پر یحییٰ ہاں میں سر ہلاتا ہے تو ایک شخص کہتا ہے یہ یحییٰ ہے، انہوں نے بچے کے بابا کو شہید کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی سے کہتے ہیں کیا تم ہمیں حملہ کے بارے میں کچھ بتاؤ گے یحییٰ؟ آپ کی بار بھی یحییٰ ہاں میں سر ہلاتا ہے اور اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب وہ چھپ کر یہ ساری لڑائی دیکھ رہا تھا۔ چاتیون کے چوغے پر اس نے ایک نشان دیکھا تھا۔ اس خیال کے بعد کیونکہ یحییٰ کچھ بول نہیں پاتا تو زمین پہ وہ نشان بنانے لگ جاتا ہے۔ نشان کو دیکھتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میم حروف کے اوپر لائن ایسی ہی ہے نا؟ تو یحییٰ ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں سلیب کو ایک چاقو کی طرح میم میں پیوست کیا گیا تھا، ابراہیم تمہارے ہاتھ کی صفائی خوب ہے، اسے فوراً کہیں کھینچ لاؤ۔ صلاح الدین ایوبی یحییٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یحییٰ چلا جاتا ہے۔ نشان کو دیکھتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں وہ جو کچھ بھی چھپا رہے ہیں میں آخرکار اسے ظاہر کر لوں گا۔ کچھ کے زندان میں لارڈ سبیلا سے کہتا ہے عدالت کے فیصلے پر آج عمل درآمد کر دیا گیا ہے، میں اب باضابطے طور پر ایک ایسا آدمی ہوں جس نے اپنا سارا مال کھو دیا ہے۔ تو سبیلا کہتی ہے نہیں، ہماری سب سے بڑی دولت ہمارا آنے والا بچہ ہے، تو مضبوط رہو لارڈ جوم۔ ویسے بھی عجیب اور غیر متوقع چیزیں جاری ہیں۔ لارڈ جوم پوچھتا ہے کیا ہوا ہے؟ تو سبیلا کہتی ہے انہوں نے غزہ پہ حملہ کیا، بہت سے مسلمان مارے گئے، بہت سے نوجوان۔ لارڈ جوم پوچھتا ہے یہ کس نے کیا؟ تو سبیلا کہتی ہے ابھی تک معلوم نہیں ہے، میرے بابا نے سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے بالین کو غزہ بھیجا ہے۔ جواباً لارڈ جوم کہتا ہے یہ صحیح انتخاب ہے، بادشاہت میں مسلمانوں کے ساتھ تعلقات رکھنے کے لیے بہترین شخص بالین ہے، وہ مجھ سے ملنے آیا تھا، اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ یہ سن کر سبیلا مسکرا دے غزہ میں ابراہیم کو نشان لا کر صلاح الدین ایوبی کو دیتا ہے۔ نشان کو دیکھ کر صلاح الدین ایوبی اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اس لیے انہیں مقبرے کے سامنے کرتگن دکھائی دیتا ہے جو کسی گہری سوچ میں پڑا ہوتا ہے۔ وہ خلیل سے پوچھتے ہیں اسے کیا ہوا ہے؟ تو خلیل کہتا ہے میرے امیر ضرور اس واقعے نے اسے متاثر کیا ہے، جب یہ قبر کے دروازے پر پہنچا تو اسے کچھ ہوا، بالکل بھی نہیں بول رہا، آواز لگا رہا ہوں لیکن سن نہیں رہا، یہ بالکل سکتے میں ہے۔ صلاح الدین ایوبی اس کی جانب بڑھنے ہی لگتے ہیں کہ بالین وہاں پہنچتا ہے۔ بالین کو اس طرح آتا ہوا دیکھ کر صلاح الدین ایوبی چونک جاتے ہیں۔ ایسے پوچھتے ہیں میرے امیر یہ کافر یہاں کیوں آ رہا ہے؟ یہ یقیناً مرنا چاہتا ہے۔ خلیل کہتا ہے کہ ہمارے زخم دیکھنے آیا ہے۔ بالین صلاح الدین ایوبی سے کہتا ہے امیر صلاح الدین جو کچھ ہوا اس پر مجھے بہت افسوس ہے، میرا یقین کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی دونوں طرف کے سپاہی تلواریں بے نیام کر لیتے ہیں اور خلیل کہتا ہے کہ
ये हमारा मजाक बना रहा है। अगर तुम यहाँ तमाशा देखने आए हो तो मैं तरस नहीं खाऊंगा और ये नहीं कहूंगा कि हमने एक ही प्याले से खाया और एक ही छत के नीचे रहे। सलाउद्दीन यूबी के हुक्म पर वो तलवारें नीचे कर लेते हैं और सलाउद्दीन यूबी पूछते हैं, तुम्हारा गज़ा में क्या काम है बालेन? हमारे दर्द के लम्हात में यहाँ आने का मकसद क्या है? तो बालेन कहता है, मैं कुछ की बादशाह की नुमाइंदगी करने आया हूँ। मैं मारले की ताज़ियत लेकर आपके पास हूँ। शाम में सुल्तानी मारले की जानिब से आए वो खत पढ़ रहे होते हैं। खत में लिखा होता है, सुल्तान नूरुद्दीन, मैं चाहता हूँ कि आप जान लें कि मेरे नजदीक आपके मुकद्दसात पे हमला करना नाकाबिल कबूल है। मैं अपनी बादशाहत और अपने बेटे शहजादे बाल्डोन की कसम खाता हूँ, अगर मैं उन हमलावरों को अपने सामने पाता तो मैं बजाते खुद उन्हें सजा देता और मैं उन्हें सजा दूंगा भी। मुझे उम्मीद है कि यह दर्दनाक वाकया, जिसके बारे में मुझे यकीन है कि जानबूझकर किया गया है, हमारे दरमियान जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का बाइस नहीं बनेगा। मैं आपको पुरसकून रहने की दावत देता हूँ जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता। मैंने जो कुछ लिखा है इसके बावजूद अगर आप इस मामले का इल्जाम हम पर लगाते हैं और हमारे खिलाफ सिपाही भेजते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप जान लें कि मैं तैयार हूँ और किसी भी रवैये का जवाब दूंगा। खत पढ़ने के बाद सुल्तान अस्फहानी से कहते हैं, जब भी मुझे इस बादशाह माले की तरफ से कोई पैगाम मौसूल होता है मैं अपने मुंह में बोसीदा जायका महसूस करता हूँ। अस्फहानी पूछते हैं, मेरे सुल्तान उसने क्या लिखा है? तो सुल्तान उसे खत के बारे में बताते हैं। फिर कहते हैं, तुम जरा इंतजार करो मालिक, तुम शुरू तो करो, हम सब तैयार हैं। गज़ा में सलाउद्दीन यूबी बालिन से कहते हैं, मैंने सोचा कि तुम पेरिस वापस चले गए हो, तुम बादशाह मालिक की खिदमत कब से कर रहे हो? तो बालिन कहता है, ये कहने वाले तुम नहीं थे कि मेरा यहाँ रहना ज्यादा फायदेमंद है? तो फिर लो, मैं यहाँ ठहर गया। बादशाह और मैं सुलह के ख्वाह हैं। तो सलाउद्दीन यूबी कहते हैं, बादशाह मालिक का अमन जंग का पर्दा है, क्या उसने पहले अपने कातिलों को और फिर अपने कासिद भेजे? तो बालिन कहता है, मैं तुम्हें दोबारा यकीन दिलाता हूँ कि बादशाह मालिक का इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही उसे खबर मिली उसने मुझे बुलाकर तुम्हारे पास भेज दिया। सलाउद्दीन यूबी कहते हैं, हमने अभी तक अपने शहीदों को जमीन के हवाले भी नहीं किया। मैं कैसे जान सकता हूँ कि कौंत का खिताब दोबारा पाने के लिए तुम हमें धोखा नहीं दोगे? बालिन कहता है, अगर मुझे उस तख्त की परवाह होती तो मैं पहले ही वहाँ बैठा होता और मैं इसके लिए खून बहाने से दुरेग ना करता। मेरा यकीन करो, मुझे इस जुर्म के मुर्तकिब अफराद को तलाश करने की इजाजत दो। कुछ में लड़काई शदीद गुस्से में चातियों के पास आता है और उससे पूछता है, तुम कहाँ थे? उसके जवाब ना देने पर फिर से पूछता है, तुम कहाँ थे? तो चातियों अंगूर खाते हुए कहता है, मैं यहाँ था, अपने कमरे में आराम कर रहा था और मैं अपनी इबादत खाने में भी गया था। आखिर मुझे जैसे मुजरिम को पाक होने के लिए देर तक दुआ करने की जरूरत है। लड़काई कहता है, फिर तुम्हें गज़ा पे हमले के बारे में भी खबर नहीं होगी, है ना? विलियम चुपके उनकी बातें सुन रहा होता है और लड़काई चातियों से कहता है, मुझे हैरत है कि क्या तुम इस मामले में मुलव्वस हो? चातियों अनजान बनते हुए कहता है, मेरा यकीन करो, मैं इस खुशखबरी के बारे में तुमसे सुन रहा हूँ। सच में मेरा दिन बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। फिर आगे बढ़ते हुए कहता है, उनकी हुर्मत को पामाल होते हुए उन मुसलमानों के चेहरे को देखना मुझे बहुत खुशी देता है। लेकिन क्या तुम जानते हो लड़काई कि मैं अब इस किस्म की चीज के लिए बहुत बुरा हूँ? तो लड़काई कहता है, तुम बूढ़े हो रहे हो लेकिन तुम्हारा शैतान सुकून नहीं कर रहा। चातियों, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। अगर तुम मुझे बताए बगैर जरा सी भी बेवकूफी करते हो, जरा बराबर गलती करते हो। चातियों हंसते हुए कहता है, मैं जानता हूँ, तुम मुझे दोबारा जिंदान में डाल दोगे। लड़काई उसे तलवार दिखाते हुए कहता है, मैं अपनी आधी तलवार से तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, जिंदान में नहीं डालूंगा। फिर लड़काई जैसे ही आगे बढ़ता है विलियम एकदम से जाकर छुप जाता है और लड़काई दूसरी तरफ चला जाता है। गज़ा में सलाउद्दीन यूबी बालिन को निशान दिखाते हुए पूछते हैं, क्या आप जानते हैं कि इस इलामत का क्या मतलब है? निशान देखते हुए बालिन कहता है, ये नामुमकिन है, वो दोबारा नहीं हो सकते। सलाउद्दीन यूबी पूछते हैं, कौन? तो बालिन कहता है, अल मुता, ये उनकी निशानी है। सलाउद्दीन यूबी कहते हैं, हमने उनके बारे में सुना है और हम उन्हें जानते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये उनकी निशानियों में से एक है। बालिन कहता है, ये पोप की तरफ से ममनुआ फिरकों में से एक है, लेकिन तवील अरसे से इनका कोई सुराग नहीं मिला। सलाउद्दीन यूबी कहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो दोबारा आएंगे, हमें वो सब कुछ बताएं जो आप इनके बारे में जानते हैं बालिन। तो बालिन कहता है, वो दावा करते हैं कि वो इस दुनिया में किसी चीज का लालच नहीं करते, उनके पास मलकियत नहीं है, वो अमूमन शादी नहीं करते, उनका अकीदा है कि वो खून बहाने से पाक होते हैं, उनका रहनुमा बदल भी जाए तो वो हमेशा उसी नाम से जाने जाते हैं। वो उसे शेबहू कहते हैं, ये सुरमाओं के एक कदीम सुरमा का नाम है। कुछ उसे बहादुर के तौर पर देखते हैं और कुछ उसे कातिल के तौर पर। सलाउद्दीन यूबी कहते हैं, यह नाम मैंने भी सुना है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि यह हकीकी है या सिर्फ अफसानवी। इस निशान के मानी और इनके अहदाफ बिल्कुल वाज़ेह हैं। इसमें मीम हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला देता है। क्या इन लोगों की कोई मखसूस कारगाह नहीं है? तो बालिन कहता है, ये एक पुरस्कार तंजीम है, लेकिन मेरे वालिद ने मुझे बरसों पहले बताया था कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। वो सब बैतुल हम के करीब बेवेना पहाड़ी पर एक गार में मारे गए थे। उन्होंने बाद में वहाँ की यादगार भी तामीर की थी। सलाहुद्दीन यूबी पूछते हैं, बालिन क्या आप वहाँ ले जा सकते हैं? तो बालिन कहता है, बिल्कुल, मैं उस वक्त तक आपके साथ रहूंगा जब तक कि हम इसके जिम्मेदारों को तलाश ना कर लें। इसलिए हमें उमर मल्ला वहाँ आते हैं। कुछ में बाल्डोन अपनी बहन सबीला के साथ शतरंज खेल रहा होता है। करीब ही में लड़गाई एक कमांडर के साथ खड़ा होता है। चाले चलते हुए बाल्डोन लड़गाई की काफी तारीफें कर रहा होता है। तो सबीला उसे कहती है, एक दिन जब तुम बादशाह बनोगे तो तुम्हें अपने इर्द गिर्द सही शोबीर चाहिए होंगे, उसके लिए तुम्हें अभी से सही फैसले करना सीखना होंगे। ये कहते साथ ही उसकी चाल नाकाम बना देती है। गज़ा में सलाहुद्दीन यूबी उमर मल्ला से कहते हैं, अच्छा हुआ कि आप आ गए, आपकी बदौलत गज़ा के लोगों के दिल को सुकून मिलेगा, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। उमर मल्ला बालिन की जानिब देखते हुए पूछते हैं, ये कौन है? तो सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं, कौन? बालिन, एबलेन की जगीर का वारिस, ये बादशाह मालिक के हुक्म से हमारी मदद करने आया है। उमर मल्ला बालिन से पूछते हैं, आपके बादशाह को क्या भेड़िए के बारे में नहीं मालूम? तो बालिन कहता है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। उमर मल्ला उसे रोकते हुए कहते हैं, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि वो बिल्कुल बेकसूर है? कभी कभी हम जो करते हैं और जो हमारा अंजाम बनता है ये ऐसी चीजों का सबब बनता है जिसकी हमें तवक्को नहीं होती। कातिल बनने के लिए आपको अपने हाथों से मारने की जरूरत नहीं होती। सलाहुद्दीन यूबी उमर मल्ला से कहते हैं, शोधा को दफन किए बगैर जाना हम पर बोझ है, लेकिन हमें फौरी तौर पर जाना होगा। मैं अपने कुछ सिपाहियों को आपके पास छोड़ रहा हूँ, इदरीस और इब्राहिम आपकी मदद करेंगे। उमर मल्ला कहते हैं, तुम्हारा रास्ता खुला और हमवार हो सलाहुद्दीन, सलामत रहो, तुम्हारा फरीजा अहम है। हम शोधा को दफन कर लेंगे लेकिन उनका खून रहेगा नहीं जाना चाहिए। इसके साथ ही सलाहुद्दीन यूबी बालिन और सिपाहियों के साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं और उमर मल्ला आगे बढ़कर एक नन्हे बच्चे से प्यार करते हैं। इधर शमसा एक सुनसान जगह से आगे बढ़ रही होती है और कहती है, मैं आपकी एक एक निशानी तलाश करूंगी माँ, मैं आपको ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी। एक शख्स मुसलसल उसका पीछा कर रहा होता है। एहसास होने पर शमसा पलटती है तो वो छुप जाता है और शमसा फिर से आगे बढ़ने लग जाती है और काफी डरी हुई दिखाई देती है। वो शख्स भी उसका ताकुब जारी रखता है। गज़ा में उमर मल्ला इदरीस से पूछते हैं, इदरीस कार्तिकन कहाँ है? तो इदरीस कहता है, जब उसने यहाँ आकर शहीदों को देखा तो लरस गया, अलबेज उसके साथ था और फिर मैंने
ने उसे दोबारा नहीं देखा। उधर सहरा में कर्तगन घोड़ा दौड़ा रहा होता है। अलबेज उसके पीछे जाते हुए कहता है रुक जाएं हुजूर रुक जाएं, मगर कर्तगन आगे बढ़ता ही चला जाता है और बहुत दूर जाकर घोड़े को रोकता है। फिर घोड़े से उतरते हुए कहता है मेरा दिल इस घोड़े की तरफ फटने वाला है। अलबेज पीछे आते हुए कहता है हुजूर अपना मसला बताएं, मगर कर्तगन उसे वहीं रोक देता है और खुद आगे बढ़कर एक मट्टी के पीछे जा बैठता है। फिर अपने बचपन को याद करते हुए ज़ारो कितार रोने लग जाता है। वो अपने भाई को याद करते हुए लकड़ियां इकट्ठी करता है और आग लगाने के लिए लोहे को रगड़ते हुए कहता है मैं मर क्यों नहीं गया, मैं मर क्यों नहीं गया, मैं क्यों जिंदा हूँ। आग लगाने के बाद वो चीखने चिल्लाने लग जाता है। वो मुसलसल यही अल्फाज कह रहा होता है मैं मर क्यों नहीं गया, मैं मर क्यों नहीं गया। उसे देखते हुए अलबेज भी बहुत ज्यादा परेशान हो और शहवार और सिपाहियों को लेकर उस मुकाम पे पहुंचता है जहाँ पे सोना रखा गया था और वहाँ पहुंचकर कहता है वजीर हजरत आखिरकार हम पहुंच गए, ये महल के खंडरात हैं। शेर को अपने साथियों और सिपाहियों के साथ छुपकर ये सारा मंजर देख रहे होते हैं। घोड़े से उतरने के बाद शहवार कहता है उसे बुलाओ ताकि वो आकर देखे। जो और खजाने की खोज लगाने वाले से कहता है आओ अपना हुनर दिखाओ, अगर हमें वो नहीं मिलता जिसका तुमने वादा किया था तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे, ये जान लो। वो शख्स कहता है मुझे कुछ वक्त दें, मुझे घूमना पड़ेगा। ये कहते साथ वो आगे बढ़ जाता है और जौहर शहवार से कहता है वजीर मैंने आखिरकार आपसे अपना वादा निभाया। इसके साथ ही शेर को सिपाहियों के साथ उनकी जानिब दौड़ पड़ते हैं। उन्हें आता हुआ देखकर शहवार को बहुत गुस्सा आता है। वो तलवार पे नियाम करते हुए कहता है अल्लाह तुम्हें गलत करे, हम जाल में फंस गए हैं। खजाने की खोज लगाने वाला छुपकर ये सारा मंजर देख रहा होता है और उस लम्हे को याद करता है जब काजी फाजिल ने उसे कहा था आपको उन्हें कुछ महसूस नहीं होने देना चाहिए, जब आप खंडरात तक पहुंचे तो कोई बहाना करके दूर चले जाएं और वो जगह छोड़ दें। इस शख्स ने पूछा था फिर क्या होगा, तो काजी फाजिल ने मुस्कुराते हुए कहा था वो आपको ढूंढ लेंगे, यकीन रखें। इस ख्याल के बाद शेर को कहते हैं अल्लाह आदिल है, हर हकदार को उसका हक दिया जाएगा। तुम सब अपने मसाइब को ढूंढते रहे, आखिरकार तुम्हें मिल गया, चलो हमला। ये कहते साथ ही शेर को और उसके साथियों पे टूट पड़ते हैं। दूसरी तरफ शमसा मुसलसल आगे बढ़ रही होती है और परेशान होते हुए कहती है या अल्लाह मेरी मदद फरमा, काश कि मैं अकेली ना आती। वो एक मुकाम पर रुककर पीछे पलटती है और जैसे ही वापस पलटती है तो वो शख्स उसके सामने खड़ा होता है। शमसा एकदम से चाकू उसके गले पर तान लेती है तो वो शख्स अजीब बर्ताव करते हुए कहता है एक बार जब सतून आपके दाएं तरफ हो तो पीछे मुड़कर देखें, एक दरवाजा आपका मुंतजर है, छतों के दरमियान एक छत है, छत के नीचे एक लावारिस परिंदे का घर है। एक बार जब सतून आपके दाएं तरफ हो तो पीछे मुड़कर देखें, एक दरवाजा आपका मुंतजर है, छत के नीचे एक लावारिस परिंदे का घर है। शमसा चाकू जैसे ही पीछे करती है तो शमसा के हाथ से चाकू गिर जाता है, मगर चाकू उठाने के बाद वो जैसे ही खड़ी होती है तो वो शख्स गायब हो चुका होता है। शमसा बहुत ज्यादा घबराई हुई दिखाई देती है और कहती है इनमें से कौन सा घर है, ऐ खुदा मुझे बचा। फिर उस पागल की बातों को याद करते हुए तलाश शुरू कर देती है। उधर मेहदूद मुसलसल शहवार के सिपाहियों को काट रहा होता है। शहवार भी जंगी सिपाहियों को शहीद कर रहा होता है। शेर को और यारोकी की भी तलवार आबोताब से चल रही होती है। शहवार के सिपाही मुसलसल करते ही चले जाते हैं। जो और जंगी सिपाहियों को शहीद करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और घोड़े के पास जाकर शहवार से कहता है वजीर हजरत आ जाएं। ये सुनते साथ ही वजीर आगे बढ़ता है तो मेहदूद कहता है शहवार फरार हो रहा है, मगर शहवार घोड़े पर सवार होते साथ ही जोहर के साथ निकल जाता है और शेर को उसके पीछे भागते हुए कहते हैं तुम अपनी तकदीर से बच नहीं सकते शहवार। ये कहते साथ वो आगे बढ़ते हैं और कई दुश्मनों को पिछाड़ देते हैं, मगर इसके बाद नहीं रुकते और घोड़े पर सवार होकर शहवार के पीछे जाते हैं। इधर शमसा मुसलसल वो घर तलाश कर रही होती है। इधर बालिन सलाउद्दीन यूबी के साथ एक रारगाह से आगे बढ़ रहा होता है जहाँ पे सुलभी सिपाही दीवारों के साथ बंधे होते हैं। सलाउद्दीन यूबी से पूछते हैं ये कौन है, तो बालिन कहता है इन सुरमाओं को इनकी सजा मिल रही है। यह जगह कदीम जमाने में ईसाइयत के दुश्मनों के लिए सजाए मौत के इलाके के तौर पर इस्तेमाल होती थी। अब सुरमाओं ने उन शवेरों को पकड़ा हुआ है जिन्होंने यहाँ हुक्मदुली की थी। 3 दिन और 3 रातों के बाद वो इस्लाह की एक शक्ल के तौर पर जिंदान से निकल गए। उधर सराय में चातियों लोकास से कहता है मुसलमान इसका जवाब नहीं देंगे जो हमने किया है, हाँ ये अच्छा नहीं रहा। इन मुसलमानों को क्या हो गया है, वो पहले ऐसे नहीं थे। जब हाथ उनकी हुर्मतों की तरफ बढ़ाया जाता तो उनकी आंखें उस वक्त तक नहीं सोती थी जब तक कि वो उस हाथ को काट ना देते। लोकास कहता है नूरुद्दीन जंगी ने अमीर सलाउद्दीन को गजा भेजा है और इमार लेक। तो चातियों हंसते हुए कहता है रुको 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 बालेन, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। लोकास कहता है अमीर सलाउद्दीन और बालेन मुत्तहिद हो गए हैं और कब्र पे हमला करने वालों की शनाख्त तलाश कर रहे हैं, अगर उन्हें मिल गई तो क्या होगा। चातियों कहता है वो उन्हें तलाश करेंगे। इधर हम देखते हैं कि सलाउद्दीन यूबी बालेन के साथ एक सतून के पास खड़े होते हैं जिस पे बहुत से नाम दर्ज होते हैं। सलाउद्दीन यूबी बालेन से पूछते हैं यहाँ नाम किसने लिखे हैं, तो बालेन कहता है मुहाफिज जिनको फांसी दी गई उनमें से एक नाम शेबहू है जिसके बारे में आपको बताया था। नामों के साथ साथ वहाँ पे वही निशान बना होता है जिस पे उंगली रखते हुए सलाउद्दीन यूबी कहते हैं एक ही तरह के निशान है। तो बालेन कहता है चूंकि हम इस इलामत को ज्यादा कसरत से देखना शुरू कर रहे हैं इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा अफरा तफरी होने वाली है। सलाउद्दीन सराय में लुकास चातियों से पूछता है आपका क्या मतलब है कि वो उन्हें ढूंढ लेंगे चातियों। तो चातियों कहता है मैंने उनकी तलाश करने के लिए कुछ निशानात छोड़े हैं। इसरार और खौफ अच्छा है, वो दुश्मन को चौकन्ना रखता है। ये कहते साथ वो उस लम्हे को याद करता है जब इस सतून पे उसने ये निशान खुद ही बनाया था। इस ख्याल के बाद लुकास पूछता है अब हम क्या करेंगे, हमें उफक पर कोई जंग नजर नहीं आती। तो चातियों कहता है चूंकि सुल्तान नूरुद्दीन हम पर हमला नहीं करेगा फिर हम खुद हमला करेंगे, देखते हैं कि क्या मालिक अमन के नारे लगाते हुए लोगों के दरमियान घूम सकेगा। लुकास मुस्कुराते हुए कहता है मैं उसके लिए एक बेहतरीन जगह जानता हूँ। तो चातियों कहता है मुझे कोई शक नहीं है। उधर सलाउद्दीन यूबी उस निशान पर से धूल उड़ाते हुए कहते हैं इस इलामत को दीवार में तराशे अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, वो यकीनी तौर पर कातिल शेबहू के रूप को जिंदा करने की जस्तजू में है। मुझे शेबहू और बाहर से निकाले गए गिरजाघर के फिरके के बारे में मजीद मालूमात चाहिए बालिन। तो बालिन कहता है मैं किसी ऐसे शख्स को जानता हूँ जो मुझसे ज्यादा मालूमात बता सकता है। उधर बेबरस भाई के साथ खुदाई करते हुए सोने को तलाश कर रहा होता है और काफी खुदाई के बाद उन्हें सोने के संदूक मिल जाते हैं। उस शख्स की बदौलत उन्हें ये सोना हासिल होता है। क्या रोकी के सिपाही उससे पूछता है कि आपको वजीर के गजब का खौफ नहीं आया। जवाबन वो शख्स कहता है जितनी भी कीमत चुकानी पड़े मैं बेअदल लोगों की खिदमत नहीं करता। अगर काजी फाजिल किसी चीज का हुक्म देते हैं तो फौरन किया जाता है। सोने से भरे 3 संदूक बाहर निकाल कर खोल दिए जाते हैं। सोने को देखकर बेबोरा ये बताता है कि सोना बिल्कुल असली है, इसलिए मैं शेर को वहाँ आते हैं और घोड़े से उतरते हुए कहते हैं मैं उस बुज़दिल को नहीं पकड़ सका। तो यारोकी कहता है गम ना करो मेरे शेर को, हर फतह की किस्मत मुख्तलिफ होती है, अल्लाह का शुक्र है कि गनीमत हमारे हाथ में है। शेर को कहते हैं हम शाम जाएंगे और फौरन फौज जमा करेंगे, हम अपने सुल्तान से इजाजत तलब करके उस मलून का ताकुब करेंगे। मेहदूद कहता है जल्दबाजी शैतान का काम है शेर को, बहरहाल शहर में मजामत होगी, हमने अपना मकसद हासिल कर लिया है, बाकी मामले पर हम अपने सुल्तान से बात करेंगे। बेबोरा सिपाहियों को जमा करो, हम जा रहे हैं। कुछ में मालिक विलियम से पूछता है क्या हमारा पैगाम नूरुद्दीन तक पहुंच गया है। तो विलियम कहता है उसे महल में पहुंचा दिया गया है, जल्दी बालिन की खबर भी सुल्तान नूरुद्दीन तक पहुंच जाएगी। मालिक कहता है अगर वो हम पर कत्ल का इल्जाम लगाते
जाते हैं, इसका मतलब है कि जंग हमारी दहलीज पर है, हमें तैयार रहने की जरूरत है। इसलिए में सिपाही वहाँ पे आकर कहता है, मलका मैला आ गई है जनाब। इजाजत मिलते साथ ही मैला वहाँ आती है। उसे देखकर इमाम मलिक कहता है, मलका मैला, ये आपका नाम क्या था? क्या मुझे आपको हुमैरा खातून कहना चाहिए था? मैंने आपको हमारे दुख बांटने की दावत दी है। मैला कहती है, आपको अपने उस दोस्त का गम है जिसे आपने मुश्किल तरीन काम के लिए भेजा, लेकिन आपने उसके जनाजे में शिरकत की ज़हमत नहीं की। अगर जंगियों को मिस्र से बाहर ना निकाला गया होता तो मैं अमीर सलाउद्दीन को कत्ल करके अपने शोहर माइल्स का इंतकाम ले चुकी होती। जवाब में इमाम मलिक कहता है, हम ये करेंगे मैला, आपको इसमें बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। बराए करम के ले जाएं और अपने किले की अच्छी तरह देखभाल करें। मैला कुछ कहने लगती है तो इमाम मलिक कहता है, आराम से मैला, आराम से। इसके साथ ही मैला वहाँ से चली जाती है। उधर शमसा पागल की बातों को याद करते हुए घर तलाश कर रही होती है। इसलिए में उसे घर मिल जाता है और वो खुश होते हुए उस घर में दाखिल हो जाती है। वो आगे बढ़ी रही होती है कि मोतियों का डब्बा गिर जाता है। वो घर भी काफी ज्यादा सुनसान दिखाई दे रहा होता है। दूसरी तरफ घर में दाखिल होते हुए बालिन सलाउद्दीन यूबी से कहता है, अगर वो अब भी जिंदा है तो हम खुशकिस्मत हैं। वो कदीम सुरमाओं में से एक है। विरसा के मुताबिक उसने शेबहू को कत्ल किया था। यही वजह है कि वो कहते हैं कि वो इतना अरसा जिंदा रहा। ये कहते साथ ही दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर से निकलने वाला बूढ़ा शख्स उसके गले पर खंजर तान लेता है। बालिन उससे कहता है, पारस पुरस्कून हो जाओ, हम खुद से आ रहे हैं। मेरा नाम बालिन है, एबलिन का बालिन। कुछ चीजें हैं जो हमें आपसे पूछनी है। सलाउद्दीन यूबी को देखते हुए पारस कहता है, तुम एक मुसलमान के साथ क्या कर रहे हो? कुछ से मैला शदीद गुस्से में आगे बढ़ रही होती है। इसलिए में एक तरफ से निकलने वाला लड़गाई उसे रोक लेता है और कहता है, ऐसा लगता है कि आप जल्द अज जल्द कुछ छोड़ना चाहती हैं। तो मैला कहती है, बदकिस्मती से मुझे एक बार फिर एहसास हुआ कि कैरे के गोद लिया हुआ किला है। जवाब में लड़गाई कहता है, गोद लिया जाए या ना लिया जाए, बादशाहत हमेशा अपने बच्चों को हड़प करने के लिए मौजूद रहेगी। इंसान को कुचलने वाले इस निजाम के सामने खड़े रहने का एक ही रास्ता है, हमेशा मजबूत रहो। मैं यहाँ आपको रास्ता दिखाने के लिए आया हूँ, न सिर्फ सलाउद्दीन से बल्कि तमाम जंगियों से इंतकाम लेने का रास्ता। वक्त जाया न करें और फौरन दोबारा शादी कर लें। यह सुनकर मैला गुस्से से कहती है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? माइल्स की कब्र की मिट्टी भी अभी तक खुश्क नहीं हुई। तो लड़गाई कहता है, वो खुश्क हो जाएगी, लेकिन खुशकिस्मती से आप जिंदा हैं। जिस शख्स से आप शादी करने का इंतखाब करती हैं उसे बड़ी ताकत दी जाएगी। तो उस शख्स को आपका इंतकाम बांटने वाला क्यों नहीं होना चाहिए? हकीकत में मैं किसी ऐसे शख्स को जानता हूँ। ये सुनते साथ ही मैला उसे थप्पड़ मारने लगती है, मगर लड़गाई उसका हाथ पकड़ लेता है। तो मैला कहती है, मैं तुम्हें इस जुर्रत का बदला दूंगी। जवाब में लड़गाई कहता है, अगर आप मेरी पेशकश को मुस्तरद करती हैं तो आप वो हैं जो कीमत अदा करेंगी, जैसे आपकी खाला ने बरसों पहले इसके लिए अदायगी की थी। अपने प्यारों के बारे में सोचे मलका, हम फिर मिलेंगे। ये कहते साथ ही लड़गाई सलाउद्दीन यूबी और बालिन पारिस के पास बैठे होते हैं और पारिस निशान को देखते हुए कहता है, वो कभी पीछे नहीं हटे और ना ही पीछे हटेंगे। वो तारीख को दोहरा रहे हैं। यही वजह है कि वो मासूम लोगों पे मुसलसल हमले करते हैं। सलाउद्दीन यूबी से पूछते हैं, जिस कैद को तुमने मारा है उसे कहाँ से पकड़ा था? तो बालिन कहता है, खानका से। दूसरी तरफ उस घर में शमसा को एक कपड़ा दिखाई देता है। वो जब उसे उठाकर देखती है तो उस पर बिल्कुल वैसे ही डिजाइन होता है जैसा कि शमसा की बाजू पे बना होता है। ये देखकर शमसा बहुत खुश होती है और नम आंखों के साथ कहती है, तो आप जिंदा हैं माँ? मैं जानती थी, आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा, मैं जानती थी। शाम में शेरको, यारुकी और मियोदोद सुल्तान के दीवान में दाखिल होते हैं। उनके पीछे पीछे सिपाही सोने के संदूक लेकर आते हैं और शेरको के इशारे पर संदूक खोल देते हैं। शेरको सुल्तान से कहते हैं, मेरे सुल्तान कायरा में जो कुछ हुआ उसके लिए माजरत कबूल फरमाई। सुल्तान खड़े होकर सोने को देख रहे होते हैं कि शेरको कहते हैं, हम शहवार को मारने वाले थे मेरे सुल्तान, लेकिन आखिरी लम्हात में। सुल्तान हाथ के इशारे से उन्हें खामोश करवाते हुए कहते हैं, क्या हमने तुम्हें शहवार को मारने के लिए भेजा था? क्या आप समझते हैं कि हमारा हिसाब शहवार को कत्ल करना था? क्या तुमने इन सालों में इनमें सियासत से कुछ नहीं सीखा? देखो, मैं तुम्हें तफसील से बता रहा हूँ ताकि तुम इसे अच्छी तरह समझ सको। अगर तुम वहाँ शहवार को मार देते, ये सोना जो तुम लाए हो इसकी कदर एक पैसा भी ना होती। हम जो हासिल करना चाहते हैं वो मिस्र है, मिस्र सोना नहीं, ना ही शहवार का सर। उधर रात के वक्त रहमे सलाउद्दीन भी बालिन के साथ बैठे खाना खा रहे होते हैं और कहते हैं, हर चीज बताती है कि ये हमले जारी रहेंगे। बालिन कहता है, निशाना फिर भी बेगुनाह होंगे, हमें एहतियात बरतनी होगी। जवाबन सलाउद्दीन भी कहते हैं, हम किसी का खून बहाने की इजाजत नहीं दे सकते, ना ही हमारे सुल्तान इसकी इजाजत देंगे। उन दोनों के साथी भी करीबी बैठे खाना खा रहे होते हैं। सलाउद्दीन भी कहते हैं, हम इस बारे में तफसीली मालूमात हासिल करेंगे और उनके आसपास के इलाके में कहाँ पे हमला करने का इम्कान है इसके बारे में भी जानेंगे। कुछ में चातियों दुआ मांगते हुए कहता है, खुदावन मैंने आज तक बहुत गुनाह किए हैं और अब मैं एक और कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मुझे समझ सकोगे। मसीही खून जो मैं बहाऊंगा वो मुसलमानों के खून की नदियां बहाने का सबब बनेगा। मैं सबसे पहले अपने आप से शुरू करूंगा। ये कहते साथ वो थोड़ा सा हाथ काट के खून बहाता है और मजीद कहता है, खुदावन मेरे जिस्म को मुसलमानों के खून से धो दे और मेरी रूह को इससे पाक कर दे। ये कहते साथ वो कमरे से निकल जाता है। गज़ा में दिन के वक्त सलाउद्दीन भी लतीफ से पूछते हैं, तुमने जख्मियों की देखभाल की है ना? तो लतीफ कहता है, जी हाँ मेरे अमीर। इसलिए मैं वहाँ पे आते हैं और एक दस्तावेज सलाउद्दीन को देते हुए कहते हैं, मेरे अमीर ये इर्द गिर्द के इलाकों में दूसरे मज़ारों की फहरिस्त है, नेज़ मसाजिद की भी फहरिस्त है जहाँ लोग नमाज जुम्मा के लिए इकट्ठे होंगे। तो सलाउद्दीन भी कहते हैं, अच्छे तुम उर्फा के साथ रमला में हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार पर जाओगे। बज़ोक तुम इब्राहिम के साथ अजीम मस्जिद उमरी में जाओगे, तुम उसके इर्द गिर्द मुहाफिज तैनात कर देना। इसलिए में एक पादरी वहाँ आता है और सलाउद्दीन से कहता है, बराए मेहरबानी मेरी ताज़ियत कबूल फरमाई। उधर एक मुकाम पर चातियों सिपाहियों से कहता है, ये सब खत्म होने तक तुम लोग भूल जाओगे कि तुम मसीही हो, तुम मुसलमानों की तरह कदम उठाओगे। हर चीज का एक मौसम होता है और आसमान के नीचे हर वाक़े का एक वक्त होता है। पत्थर फेंकने का एक वक्त होता है, पत्थर जमा करने का एक वक्त होता है। साथ में हमें पादरी बच्चों को खानका में पढ़ाते हुए दिखाई देते हैं और चातियों भी अपने सिपाहियों के साथ घोड़े दौड़ा रहा होता है। अगले मंजर में वो अपने सिपाहियों के साथ एक साहिल पे जा पहुंचता है और लोकास से कहता है, मैं यहाँ बहुत मशहूर हूँ, तुम्हें मालूम है, मेरे लिए बहुत करीब जाना खतरनाक है। मंसूबे से हटे बगैर और कोई निशान छोड़े बगैर ये काम मुकम्मल करना, चलो जल्दी जाओ। और हाँ, अगर कुछ गलत हो जाता है तो तुम जानते हो कि क्या करना है। ये सुनते साथ ही लोकास सिपाहियों के साथ किश्ती में सवार हो जाता है, जबकि सिपाहियों ने मुसलमानों का बेस इख्तियार किया होता है। उधर करतगन अपने खेमे में मौजूद होता है और उस पर सख्ता तारी होता है। अलबेज उसे खाना दिखाते हुए कहता है, देखिए जनाब, मैंने गोश्त वैसे पकाया जैसे आपको पसंद है, बाहर से खस्ता खस्ता, अंदर से नरम और लजीज, थोड़ा खा लें। मगर सामने से जवाब नहीं मिलता तो वो एक मशरूब उठाते हुए कहता है, घोड़ी के दूध से तैयार करदा नशावर मशरूब, आप इसे मना नहीं कर सकते जनाब, इसका एक घूंट ले लें, कम से कम चख तो लें। मगर करतगन फिर भी साकत बैठा रहता है और कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर अलबेज कहता है, जनाब मुझे डराए मत, आपको क्या हुआ? क्या उन्होंने आपको तकलीफ दी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जाकर तबीब को बुलाऊंगा। ये कहते साथ ही अलबेज चला जाता है। अलबेज के जाते साथ ही करतगन की आंखें भर आती हैं और देखते ही देखते वो रोना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ लोकास अपने साथियों के साथ साहिल पे जा पहुंचता है और कश्तियों से उतरते साथ ही वो खानका में दाखिल
داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر لوگ کہتے ہیں مسلمان آ رہے ہیں، مسلمان آ رہے ہیں۔ پادری بچوں کو اپنے پیچھے کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر لوکاس کہتا ہے بالکل اس کے پاس جاؤ، یہ تمہیں رب کے پاس لے جائے گا۔ اگلے لمحے وہ سب تلواریں بے نیام کر لیتے ہیں، مگر اگلے لمحے ایک دروازہ کھلتا ہے اور صلاح الدین ایوبی باہر آتے ہوئے کہتے ہیں اور میں تمہیں جہنم میں لے جاؤں گا۔ صلاح الدین ایوبی کو دیکھ کر لوکاس ہکا بکا رہ جاتا ہے اور صلاح الدین ایوبی اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب پارس نے انہیں اس خانقاہ کے بارے میں بتایا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ اس خانقاہ میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے تعلقات اچھے ہیں اور آپس میں آنا جانا آسان ہے۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے سرائے میں بالن سے کہا تھا یہ سب کچھ یہی اشارہ دے رہا ہے کہ حملے جاری رہیں گے۔ سید ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ حملہ ہمیں اکسانے کے لیے کیا گیا، لیکن جب انہیں یہ واضح ہو گیا ہے کہ ہم نے اس کا جواب نہیں دیا اور نہ دیں گے تو انہوں نے وہ کرنا شروع کر دیا جس کی وہ ہم سے توقع کر رہے تھے، جیسا کہ پارس نے ہمیں بتایا۔ اس بار ان کا ہدف ایک ایسا مقام ہو سکتا ہے جسے عیسائی مقدس سمجھتے ہوں۔ اس کے بعد اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب تعزیت کرنے والے پادری نے ان سے کہا تھا امیر حضرت آپ نے مجھے بتایا تھا کہ اگر کوئی غیر معمولی چیز دیکھوں تو آپ کے پاس آ جاؤں۔ کل رات جب میں خانقاہ کی صفائی کر رہا تھا تو میں نے کچھ لوگوں کو گھومتے ہوئے دیکھا، میں روز جھاڑو دیتا ہوں مگر وہ لوگ پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی نے بالن سے کہا تھا وہ اگلے ہدف کا جائزہ لینے آئے تھے، پھر آگے بڑھے تھے اور سپاہیوں سے کہا تھا اپنا کام ختم کرنے کے بعد بغیر کسی تاخیر کے خانقاہ چلے آنا۔ ان کا نیا ہدف یہی ہے، یہ غزہ میں عیسائیوں کے لیے بہت اہم ہے۔ ان خیالات کے بعد صلاح الدین ایوبی بالن کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، ان کے ساتھی بھی ادھر ادھر سے نکل کر لوکاس کے ساتھیوں کو گھیر لیتے ہیں اور صلاح الدین ایوبی کے کہنے پر پادری بچوں کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ بالن لوکاس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے تم نہ تو مسلمان ہو اور نہ عیسائی، تمہارا تعلق کسی بھی مذہب سے نہیں ہے، تم صرف اور صرف قاتل ہو۔ اس کے ساتھ وہ دونوں تلواریں بے نیام کر لیتے ہیں اور وہاں پہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی اور بالن بغیر کوئی وقت ضائع کیے انہیں کاٹتے ہی چلے جاتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے ساتھی بھی غزہ کا بھرپور انتقام لے رہے ہوتے ہیں۔ ایتھس کی تلوار بھی اسماعیل کے انتقام میں آگ اگل رہی ہوتی ہے۔ لوکاس کے ساتھی مسلسل کٹ رہے ہوتے ہیں۔ شام میں سلطان ملکہ خاتون کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اس لیے اصفہانی وہاں آتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر سلطان کہتے ہیں مجھے ہرگز یہ مت کہنا کہ تم پھر سے کوئی بری خبر لے کر آئے ہو اصفہانی، میرا دل پہلے ہی غزہ کے لیے خون کے آنسر ہو رہا ہے۔ تو اصفہانی کہتے ہیں میرے سلطان استغفر اللہ، میں اس بار ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل کا بوجھ ہلکا کر دے۔ سلطان پوچھتے ہیں کیا صلاح الدین نے مجرموں کو ڈھونڈ نکالا؟ تو اصفہانی کہتے ہیں خوشخبری عصمت خاتون کے بارے میں ہے، آپ کو مبارک ہو، آپ کا بیٹا ہوا ہے۔ یہ سن کر سلطان بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں مگر ملکہ کچھ زیادہ خوش دکھائی نہیں دیتی۔ پھر سلطان ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں۔ ادھر صلاح الدین ایوبی نے لوکاس کو تلواروں کی نوک پہ رکھا ہوتا ہے اور وہ سے پوچھتے ہیں حکم کس نے دیا؟ بالن بھی غصے سے کہتا ہے اس نے تم سے ایک سوال پوچھا ہے۔ صلاح الدین ایوبی سے پھر سے کہتے ہیں بتاؤ کس نے تمہیں حکم دیا تاکہ تم بغیر اذیت کے مر سکو، ورنہ تم مجھ سے مرنے کی بھیک مانگو گے۔ لوکاس ڈرتے ہوئے کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے حکم بادشاہ مالیک نے دیا تھا۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور صلاح الدین ایوبی غصے میں بالن کو دیکھتے ہیں، اس لیے میں ایک تیر لوکاس کو آ لگتا ہے۔ تیر مارنے والا چاتلیون ہوتا ہے جسے دیکھ کر صلاح الدین ایوبی اور بالن کی حیرانگی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ لڑکائی بھی سپاہیوں کے ساتھ چاتلیون کے برابر آ کھڑا ہوتا ہے، وہ سب ایک دوسرے کو گھورنے لگ جاتے ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ کا بھی اختتام ہو جاتا ہے۔